Hi, hello. Today we are in this video discuss about pattern tool in Inventor. So let's start. First go ahead in a new and keep metric here, and here always keep, if you want in dimension या unit is mm, so keep standard mm and create from there and okay. So first of all, in origin, show your planes, right click and keep visibility. That plane you want, just right click and keep visibility. Okay, here we have a three plane, yz, xy and xz plane. So today topics is pattern. So today topic is pattern. So we have a three type of pattern here. You can find pattern tool here. Okay, first one is a rectangular pattern, and second one below this is a circular pattern, and again this one is third one, that is a sketch driven pattern, right? So let's start. So first of all, I'm going to create 2D sketch here. I'm just creating a simple rectangular cube here, a rectangular shape here, and go to extrude and add material. This is the 10 mm is fine now and okay. So अभी हमने क्या किया, एक rectangular pad create, rectangular extrude create किया है of 10 mm, and now I'm going to add a feature on a top face. So go to 2D sketch and select top face, and now I'm creating a circular profile here, right? Just define dimension to this. I'm going to take 10 mm diameter, and this distance, vertical distance is 8, and from here to here distance I'm going to take, that is a 12 mm. I'm considering this is a 12 mm. Okay, this is our feature, and finish and add extrude. So what happened, there is some problem. Okay, now you can see this yellow one edges are also added in a sketch. Just go back to edit your sketch, right click on a sketch, make editing, edit sketch. अभी जो हमारा ये कौन सा ब्लू, ये येलो कलर का लाइन है, इसको डिलीट कर देता हूँ. ये लाइन भी हमारा क्या हो गया, वहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है स्केच बनाते हुए. मेरे को जस्ट सर्कल चाहिए एंड स्टार्ट. I want circle just, and this is our feature of 10 mm circular pad, या circular extrude. So now I want to make pattern this feature. So first pattern is rectangular pattern. So just pick this one from here, and in the rectangular pattern we can add copies. We can create multiple copies along a direction. Okay, along a direction. So first of all, in a rectangular pattern, first option is a pattern individual feature, means we need to pick feature जिसको हमको पैटर्न करना है, हमको उसको सिलेक्ट करना है. So just select here first and select feature. This is our feature. Which one? This one, this circular extrude, that is our feature. मैंने इसको पिक किया एज अ फीचर. नाउ there is option direction 1 and second one is a direction 2. So first go with the direction 1, select on arrow option like this and define direction 1. How to define? You can pick any edge to define direction 1.
सो अभी डायरेक्शन 1 डिफाइन करने के लिए मैं ये एज पिक कर लेता हूँ, ये एज सिलेक्ट कर लेता हूँ, दिस वन सिलेक्ट। ओके, नाउ यू कैन सी इट इज सिलेक्टेड, यू कैन सी ए green arrow here, it means that is our direction 1. Okay, and there is a one copy added in a green color. So you can add many copies by this option. Now I want 5 copies, 5 duplicate. You can see there is a 5 copy, 1 2 3 4 5, including this source object. Okay, so this is the distance. Which distance? Spacing. This is a spacing, means object to object distance, means distance between two object. So I'm going to consider that. Now keep 15 mm here. Okay, now I'm considering this is 15. Oh, I will replace it by 20. ओके, अभी मैंने इसको कितना किया 20. यू कैन सी अलोंग डायरेक्शन 1, दिस इज अवर डायरेक्शन 1, इसके अलोंग 5 डुप्लीकेट्स क्रिएट हो चुके हैं, और जो स्पेसिंग है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट दैट इज 20 mm. ओके, दिस इज अवर डायरेक्शन 1. नाउ आई वांट टू ऐड अलोंग डायरेक्शन 2, सो दिस इज ऑप्शन फॉर डायरेक्शन 2. जस्ट क्लिक हियर टू डिफाइन डायरेक्शन 2 and pick any edge where you want to add. I want to add along this edge, so this is our, I'm considering this one as a direction 2. Pick this one. So you can see keep count, I want 3 count here. Okay, but count added in this direction. You can make reverse from here, you can flip the direction, just click on it. Okay, you can flip and change spacing, object to object distance 15. Right, this is our direction 2. Now count added in direction 1 as well as in a direction 2. Okay, there is a option mid plane. What is a mid plane? You can see this one in a direction 1 as well in direction 2. So in direction 1 keep mid plane, just click on it. Now you can see counted in a both direction, means the source object is considering as a middle object, and count will be added in a both side. Direction 1 as in a both side, up and left and right side. Okay, so सो यू कैन सी जो काउंट है इसके दोनों तरफ हो चुके हैं, मीन्स जो सोर्स ऑब्जेक्ट था उसको कंसीडर किया एज अ मिडल ऑब्जेक्ट, राइट, बाय क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन. अगेन डीएक्टिवेट दिस वन. इफ यू वांट मिडल ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन 2, कीप दिस वन मिडल प्लेन, क्लिक हियर. इन डायरेक्शन 2 में भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मिडिल में आ जाएगा, और जो भी हमारे काउंट थे उसके अप एंड डाउन साइड में या लेफ्ट एंड राइट साइड में आ जाएंगे, लाइक दिस. मीन्स जो ये हमारा ऑप्शन है मिड प्लेन, मिड प्लेन से क्या हो जाता है, जो हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट होता है वो मिडिल में आ जाएगा. आप उसको डायरेक्शन 1 में भी एप्लीकेबल कर सकते हो एंड डायरेक्शन 2 में भी एप्लीकेबल कर सकते हो, लाइक दिस. अभी हमने डायरेक्शन 1 में भी इसको एप्लीकेबल किया है, डायरेक्शन 2 में भी. डायरेक्शन 2 में भी वो मिडिल में है, दिस इज द डायरेक्शन 1, इसके अकॉर्डिंग भी वो मिडिल में लाई करता है. अगर मैं डायरेक्शन 1 को ऑफ किया तो ओनली डायरेक्शन 1 के अलोंग वो मिडिल में रहेगा. दोनों 2 काउंट हमारे इस साइड में रहेंगे इन अ लेफ्ट साइड एंड 2 काउंट इन अ राइट साइड. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो deactivate this one. And this is a spacing option here.
right? So there is another option, that is a distance. This is a distance. Distance मीन क्या है यहाँ पर, go here. Spacing मीन्स क्या था, एक ऑब्जेक्ट से सेकंड, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. जो 20 डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है बिटवीन ऑब्जेक्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर, दैट इज अ 20, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस. एंड डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस हो जाएगा 20, इसका टोटल डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर में जो 5 काउंट हैं वो 20 डिस्टेंस में लाई करते हैं. सपोज करो मैं इसको लेता हूँ 100, मीन्स 100 डिस्टेंस है जो फ्रॉम हियर, फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट. टोटल डिस्टेंस इज द 100 डिस्टेंस. ओके, देन नेक्स्ट वन इज अ कर्व लेंथ. सिलेक्ट दिस वन, कर्व लेंथ. व्हाट इज कर्व लेंथ? अभी देखो जैसे मैंने पिक किया कर्व लेंथ, दिस ऑप्शन इज deactivated, means we can't change here. Okay, so how to calculate curve length? So in curve length, this is our direction one, this edge is our direction one. So distance of this edge is the distance of curve length. Means if ये लाइन है जो हमारा ये एज है, अगर इसका डिस्टेंस 200 है तो जो कर्व लेंथ भी 200 हो जाएगी, राइट? मीन्स अभी जो कर्व लेंथ कितना है 114.611, मीन्स दिस इज द डिस्टेंस ऑफ दिस एज जो हमने डायरेक्शन 1 के लिए पिक किया. ओके, यू कैन मेजर इट हाउ? ओके, टू मेजर दिस एज डिस्टेंस गो टू इंस्पेक्ट ऑप्शन, go here to inspect and check measure option and select this one. Now you can see distance is 114.611. You can see here as well. Okay, I hope you understand. So in curve edge, in curve length, जो टोटल डिस्टेंस होता है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ आवर फर्स्ट डायरेक्शन या फर्स्ट एज. सो मेक एडिटिंग, जस्ट राइट क्लिक हियर एंड एडिट फीचर. कर्व लेंथ इज द डिस्टेंस ऑफ दिस एज, फर्स्ट एज फ्रॉम हियर टू हियर. ओके, तो उसका डिस्टेंस रहेगा, सपोज इट्स 200, तो 200 के अंदर टोटल काउंट को फिल कर देता है. ओके, दिस इज अ रेक्टेंगुलर पैटर्न, दैट इज अ रेक्टेंगुलर पैटर्न. ओके, डिलीट दिस वन. नाउ लेट्स सी sketch driven pattern, third type. First go with the third type, sketch driven pattern. For this, first हम on this top plane पे स्केच बना लेते हैं. स्केच मीन्स हम पॉइंट क्रिएट कर देते हैं. जो स्केच ड्रिवन पैटर्न है, स्केच ड्रिवन पैटर्न में क्या होता है, हमने क्या किया, अभी पॉइंट बना लिया है टॉप फेस के ऊपर. स्केच ड्रिवन पैटर्न क्या करता है, देखो जो हमारा रेक्टेंगुलर पैटर्न है इसमें हमने डिफाइन किया डायरेक्शन कि कौन सी डायरेक्शन में काउंट चाहिए और कितने डिस्टेंस पर चाहिए. बट इन स्केच पैटर्न where we can use this option, where we don't know the direction and we don't know the specific distance, but we know the position of object. कि मेरे को क्या मालूम है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करना है, यहाँ पे प्लेस करना है, इधर प्लेस करना है, बट मेरे को नहीं मालूम कि इसका डिस्टेंस कितना है और ना ही मेरे को मालूम है कि कौन सी डायरेक्शन है. जब अपने को डिस्टेंस नहीं मालूम होता, अपने को डायरेक्शन नहीं मालूम होती, बट वी नोइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है. फॉर दैट कंडीशन हम किसका यूज करेंगे, स्केच ड्रिवन. इसको हम यूजर पैटर्न भी बोल सकते हैं. सो गो हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल select feature, this is our feature, right? And here this is option placement option. placement में option है sketch.
जस्ट क्लिक हियर एंड पिक योर स्केच। इस ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो मैं जो भी हमने स्केच बनाया था, जो भी हमने पॉइंट क्रिएट किया, तो ऑब्जेक्ट वहाँ पर प्लेस हो गया, देखो लाइक दिस। ओके, मेक एडिटिंग, राइट क्लिक, देन एडिट फीचर, और देयर इज ऑप्शन बेस पॉइंट ऑप्शन। मीन्स अभी जो बेस पॉइंट है, ये जो ग्रीन कलर डॉट है, दैट इज अ बेस पॉइंट, दिस ग्रीन कलर डॉट। अगर मैं इस बेस पॉइंट को चेंज कर देता हूँ, सपोज करो आई एम कंसिडरिंग जो बेस पॉइंट जो है वो टॉप में लाई करता है, मीन्स यहाँ पे लाई करता है टॉप में। जस्ट क्लिक हियर, व्हाट हैपन, ओके, काउंट कहाँ पे गए, जो काउंट है वो इस फीचर के इनसाइड में चले जाते हैं, अंदर में। मीन्स बेस पॉइंट का मीनिंग क्या है, अभी मैंने टॉप पॉइंट को, मीन्स जो ये टॉप फेस है, इसको बेस पॉइंट पिक किया है, तो जो हमारा फीचर था उसका टॉप फेस कहाँ पे लाई करेगा, जो हमने पॉइंट प्लेस किया था उसके ऊपर लाई करता है। हमने क्या किया है, जो बेस पॉइंट है उसको टॉप में डिफाइन किया कि जो बेस पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करेगा, फीचर के टॉप में लाई करेगा। तो सिमिलरली जो हमारे डुप्लीकेट बनने वाले थे उसके लिए बेस पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट जो हमने क्रिएट किए थे, सेंटर पॉइंट। तो उसने क्या किया, उस फीचर का बेस पॉइंट उस फीचर के टॉप में कंसीडर किया, तो फीचर कहाँ पे चला जाता है, इसके इनसाइड में, राइट, इसके इनसाइड में चला जाता है। सो अगेन चेंज, आई एम कंसीडरिंग बेस पॉइंट इन अ बॉटम साइड, क्लिक हियर। तो सिमिलरली इस फीचर के लिए भी बॉटम पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, बेस पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, बॉटम में आएगा, तो टॉप में प्लेस हो जाएगा लाइक दिस। ओके, delete this one, and one more thing, if you want to add a pattern along a curve, okay, if somewhere if we need a pattern, add pattern along a curve, like suppose अभी मैं क्या करता हूँ, कोई स्केच बना देता हूँ यहाँ पर, गो टू हियर स्प्लाइन, और अभी मैं क्या कर देता हूँ लाइक दिस। अभी मैं चाहता हूँ कि जो मेरे को आई वांट कि जो फीचर ऐड हो इस के अलोंग ऐड होना चाहिए, इस कर्व के अलोंग ऐड होना चाहिए। आई वांट टू ऐड फीचर अलोंग दिस कर्व, सो फॉर दैट वी नीड टू गो इन अ रेक्टेंगुलर पैटर्न अगेन। रेक्टेंगुलर पैटर्न में जाएंगे, फर्स्ट सिलेक्ट फीचर, this is our feature, and define direction, this is our direction, and number of count, so अभी मैं ले लेता हूँ 8 काउंट, राइट। स्पेसिंग, स्पेसिंग डिफाइन करता हूँ 20 या फिर 18, राइट, 18, क्या वो उसके अलोंग ऐड होना शुरू हो जाएगा लाइक दिस, अलोंग करो। मीन्स रेक्टेंगुलर पैटर्न में आप नॉट ओनली लीनियर, यू कैन ऐड ऑन एनी डायरेक्शन, नॉट ओनली परपेंडिकुलर या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन, यू कैन ऐड एनी अदर डायरेक्शन में भी आप, अगर आपके पास जो कोई कर्व रहेगा उसके अलोंग भी हम ऐड कर सकते हैं, राइट। डिलीट। सो सेकेंड टाइप इज सर्कुलर पैटर्न। So first delete all these features. Now I'm going to create to discuss circular profile here. First create any circle, okay, add material by extrude, this is 10 mm, okay। अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, स्केच को एडिट फीचर, एडिट स्केच, डायमीटर थोड़ा बढ़ा देता हूँ लाइक दिस, ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड फीचर ऑन दिस टॉप फेस, अनदर फीचर ऑन दिस टॉप फेस,
suppose our feature is any rectangular shape like this. You can add any other shape as well. अभी मैंने रेक्टेंगुलर फीचर को पिक किया. ओके, आई वांट टू मेक सर्कुलर पैटर्न for this feature. So go to circular pattern and first select feature. This is our feature, and here define rotation action. How to define? Just select, you can select any circular face to define a rotation axis. Select circular face. Now you can see all the feature rotate about center of this circle like this. Okay, again make editing, edit feature. How many count you want? I need 5 count, तो 5 count आ जाएंगे. एंगल इसे 360, आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं. 270 तो 270 पे आ गए, फ्रॉम हियर टू हियर 270 पे आ गए हैं. आप एंगल भी चेंज कर सकते हो. नीड 180, तो 180 के ऊपर 5 काउंट आ जाएंगे. ओके, कीप 360 तो 360. एंड देयर इज अनदर ऑप्शन, मिड प्लेन. सिलेक्ट मीन सेम, जो सोर्स ऑब्जेक्ट है ये मिडल में आएगा और इक्वली काउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उसके दोनों साइड में. ओके, देयर इज ऑप्शन रोटेशन. सो फर्स्ट मैं 360 रखता हूँ एंगल में. सो रोटेशन मीन्स क्या है यहाँ पे? देयर इज ऑप्शन रोटेशनल ऑप्शन. फर्स्ट में क्या रोटेशनल मीन्स जो काउंट हैं वो अलोंग ए डायरेक्शन रोटेट हो जाते हैं पोजीशन से अपनी. जैसे मैंने फर्स्ट वाला किया फिक्स्ड, जो काउंट का पोजीशन क्या रहता है देखो सेम. जो हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, ऑल ऑब्जेक्ट हैं जो उसी डायरेक्शन में उसी पोजीशन में प्लेस हो जाते हैं, वो रोटेट नहीं होते. जैसे मैंने रोटेशन को एक्टिवेट किया, देखो उसका पोजीशन चेंज हो जाता है लाइक दिस. ओके, मीन्स फिक्स्ड में क्या होगा, जो ओरिजिनल जो हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन जो रहेगा वही सब का पोजीशन रहेगा, और रोटेशन में सब रोटेट हो जाते हैं अलोंग ए डायरेक्शन. ओके, दिस इज द सर्कुलर पैटर्न. पैटर्न होल फीचर वट एवर, कोई भी फीचर होने दो सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा. कौन कौन सा पैटर्न किया हमने अभी? रेक्टेंगुलर पैटर्न हमने भी देखा है, सर्कुलर एंड स्केच ड्रिवन पैटर्न, और यू कैन से इट्स अ यूजर पैटर्न. ओके, सो आज के टॉपिक्स में इतना ही डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक में फिर नेक्स्ट जो भी हमारे टूल्स रहेंगे, इम्बोज, रिव एंड मिरर, कंबाइन, थ्रेड, अदर जो भी टॉपिक्स रहते हैं हमारे वो डिस्कस करेंगे. ओके, आज के लिए इतना ही.